Welcome to Coordinate Geometry Part 12. In this part, we are going to discuss the straight line. The straight lines means straight line in a plane. Whatever we are reading here in coordinate geometry, this is also called plane geometry, because here we read everything in a plane, not in a space. We also read three-dimensional geometry. This is called coordinate geometry or two-dimensional geometry, means in a plane. When we read three-dimensional geometry, that time we discussed a straight line or many more things in space. So here straight line means straight lines in a plane. So first of all, we try to understand what does it mean straight lines. As we know, this type of line is called a straight line in general. So mathematically we say the straight line is also a curve. A curve means we know this type of not straight, then it is called curve. Okay, but actually straight line, this straight line is also a curve. But what type of curve? See, this is a curve, because if we join any 2 points of this line, the line segment joining any 2 points of this curve does not lie completely on the curve. जैसे कोई अगर कर्व है, ऐसे है, तो इसका कोई 2 पॉइंट अगर लेंगे तो उसका जो लाइन ज्वाइनिंग है ये लाइन ज्वाइनिंग पूरी इस कर्व में नहीं है ना? कैसा भी है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट डज नॉट लाई कंप्लीटली ऑन द कर्व. 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग पूरी उस कर्व में नहीं है, तो इसलिए ये सब कर्व है. और स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, लेकिन क्या है कि इसका कोई 2 पॉइंट अगर लेते हैं तो उसका लाइन ज्वाइनिंग जो होगा वो भी कंप्लीटली उसी कर्व में होगा. देखिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए और उसको मिलाइए, तो दिस लाइन सेगमेंट विल ऑल्सो लाई कंप्लीटली ऑन द सेम कर्व इन केस ऑफ straight line. So this will be used as a definition for a straight line. So we say here, what is a straight line? A straight line is a curve. A straight line is a curve such that line joining of any 2 point of the curve lies completely on the same curve. इसका कोई 2 point का line joining लेंगे तो वो भी उसी कर्व में होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. सो वी डिफाइन इन दिस वे, स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, जो भी पढ़ रहे सब प्लेन में है. स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन इज ए कर्व सच दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ द कर्व लाइज कंप्लीटली ऑन द सेम कर्व. व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन? इट इज ए कर्व. किस टाइप का कर्व है? सच दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ एनी 2 पॉइंट on the curve lies completely on the same curve. Okay, so I hope you have understand what does it mean straight line. Straight line एक ऐसा कर्व है जिसका कोई 2 पॉइंट को लेके मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पूरी उसी कर्व में होगा. ये हुआ. अच्छा, in class 11 in class 10 we read an equation of this type. ऐसा इक्वेशन पढ़े है ना? This is called linear equation in 2 variable x and y. Linear means power of the variable x and y always 1, and 2 variables are there, so it is called linear equation in 2 variable. कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जैसे इस टाइप का 2x - 3y + 5 = 0, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. इन जनरल वी राइट इन दिस वे. जनरल वे में ऐसा लिखते हैं, ax + by + c = 0 is the general notation
फॉर ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 10 में इस तरह के लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाए होंगे, इसका ग्राफ बनाइएगा तो चाहे जैसा है एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर ले लें टू वेरिएबल का और उसका आप ग्राफ प्लॉट करें तो ऑलवेज गिव्स यू ए स्ट्रेट लाइन। समझे बात? सो यू मस्ट नो ए स्ट्रेट लाइन in a plane is represented by a linear equation in two variable ax plus by plus c equal to 0. This always represents a straight line where a, b, c are any constant. This represents a straight line. शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे straight line in a plane. समझ गया? एनी इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। वी कैन प्रूफ इट। इसको प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। क्लास 10 में हम लोग ग्राफ बना के देखे हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने से स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वो तो ठीक है ग्राफिकल मेथड में, दूसरे एनालिटिकल वे में भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो इन क्लास 11 वी शो एनालिटिकली, वी प्रूफ एनालिटिकली दैट यस ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए वही स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेट लाइन एक कर्व है, इस तरह का कर्व है कि उस लाइन का कोई दो पॉइंट लेंगे तो उसको मिलाने वाला जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो पूरा पूरी उसी कर्व में होगा, तब उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो लेट अस सपोज, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, इसको प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन। लेट x1 y1 एंड x2 y2 are any two point, any two points on the, अभी कर्व बोलते हैं इसको, है ना। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व। मान लेते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का है, ऐसे भी। इसमें दो पॉइंट ले लिए, एक x1 y1 और दूसरा x2 y2। ओके, x1 y1 और x2 y2 उसमें दो पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लिए। इफ x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 पॉइंट ऑन दिस कर्व, आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व ax plus by plus c equal to 0, then what will happen? These 2 point will satisfy this equation. उस इक्वेशन में, उस कर्व में अगर ये दोनों पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग को मिलेगा x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये 0 होगा। टेक इट इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ax2 by2, x1 y1 x2 y2 दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 रखने से 0 होगा, और x इक्वल टू x के जगह पर x2, y के जगह पर y2 रखने से भी 0 होगा। ये तो हमारा दो रिजल्ट मिल गया। अगर हम लोग x1 y1 को मानते हैं कि इस कर्व का पॉइंट है तो फिर ये होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, you have to show the line joining of these 2 point। ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन पूरा पूरी उसी कर्व में होगा। ये हम लोग जब प्रूफ कर देंगे तो ये हो जाएगा कि यस, तब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। समझे बात? तो उसको प्रूफ करने के लिए
हम लोग ये जो 2 पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग है इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लेंगे, एनी पॉइंट, दैट पॉइंट मे बी हियर, हियर और एनीवेयर, एंड दैट पॉइंट शुड ऑल्सो लाई ऑन द सेम कर्व, मीन्स दैट पॉइंट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. समझे? सो नाउ टेक एनी पॉइंट, सपोज P, in between, this is suppose A and B. A और B के बीच में कोई पॉइंट एक ले लीजिए, जनरल पॉइंट. कैसे लीजिएगा? लेट P be any point between A and B such that, इस तरह से लेते हैं कि P divides AB in the ratio हम लोग ले लेते हैं कि ये लेमडा और 1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है. लेमडा का अलग अलग वैल्यू के चलते अलग अलग पॉइंट आएगा. Let us suppose P is the point in between A and B which divides the line joining AB in the ratio lambda is to 1, where lambda may be any number. For different values of lambda, this will gives you different points on the line segment AB. तो ये जनरल पॉइंट हो गया. ठीक है? So if P is a point in between A and B which divides AB in the ratio lambda is to 1, then what will be coordinate of P? तो P point का coordinate क्या होगा? It is a point which dividing in the ratio lambda is to 1. So lambda x2 plus 1 x1 by lambda plus 1 and lambda y2 plus y1 by lambda plus 1 is the coordinate of point P. ये हो जाएगा आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट. इफ दिस पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? A और B के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है. अगर ये भी सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब ये लाइन सेगमेंट पूरा पूरी उस कर्व में होगा, और तब बोल सकते हैं कि यस, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टूड? Now we show this point, general point of the line segment AB, P, also satisfy this equation. Okay? And one thing you do, take this is equation 1, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए. No problem. Now substituting this in equation 1, equation 1 में substitute कर दीजिए इसको, और देखिए कि उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों साइड 0 0 आना चाहिए. सब्स्टिट्यूटिंग P इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. ठीक है? इधर थोड़ा मिटाते हैं इसको. चलिए इसको भी मिटाते हैं. सो इक्वेशन 1 में इसको बैठाएंगे. इक्वेशन 1 था आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. x के जगह पर ये बैठाएंगे, लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1, ax प्लस by ना. ओके, ax प्लस by, in place of y we write this lambda y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0 होगा था. x प्लस by प्लस c को अगर सेटिस्फाई करता है तो x के जगह पर ये पॉइंट, y के जगह पर ये पॉइंट बैठा दिया. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. देखिए इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, एलसीएम होगा नीचे लेमडा प्लस 1, ये लेमडा प्लस 1 c से मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो राइट साइड में 0 हो जाएगा. और उसके बाद
आप लेमडा कॉमन ले लीजिएगा, तो देखिए ax2 है ना, ये आएगा, यहां से आएगा by2, और यहां क्या होगा, c के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो c लेमडा प्लस c होगा, वहां लेमडा कॉमन लीजिएगा तो एक c आ जाएगा, प्लस ये ax1 प्लस by1 प्लस ये लेमडा प्लस 1c से मल्टीप्लाई था ना, तो एक लेमडा c था, लेमडा कॉमनली एक c आया, एक और c बचेगा, इक्वल टू 0. दिस विल बी आफ्टर सिंप्लीफाइंग. ओके, नाउ लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c, इसका वैल्यू तो 0 होता है ना, क्योंकि x2 y2 पॉइंट है उसका, तो ये तो 0 होगा, तो इसको 0 लिखेंगे, प्लस ये भी तो 0 होता है हमारा, तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस शोज एनी पॉइंट इफ यू टेक इन बिटवीन a एंड b. इस टाइप का कोई भी पॉइंट अगर इसके बीच में ले लेते हैं तो वो पॉइंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो हमारा जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसको सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट AB का हर एक पॉइंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा. मतलब ये लाइन सेगमेंट कंप्लीटली लाई करेगा कर्व में. तो हम लोग बोल सकते हैं यस, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. समझे बात? आप देखिए ना, दो पॉइंट लिए x1 y1 x2 y2, उसके बीच में एक जनरल पॉइंट ले लिए, तो जनरल पॉइंट लेने से भी वो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. मतलब ये पूरा लाइन सेगमेंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में लाई करेगा. हेंस इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 विच इज जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. इसलिए ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो इन दिस वे वी कैन से यस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. समझे बात? ओके, अब आगे देखिए. और ऐसे 10th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए थे, तो उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आया होगा, है ना. तो इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि यस, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. a b c में भी एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ले लीजिए, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होगा. ये चीज हो गया, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, which is very very important, that is called slope of a line. और इसका एक और नाम है स्लोप का, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट. नेक्स्ट which is most important, slope of a line. और इसको बोला जाता है, एक और नाम है इसका ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ENT होता है, ग्रेडियंट. ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, है ना. ये पढ़ना है. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. इसको ठीक से समझना है कि स्लोप ऑफ ए लाइन किसको बोलते हैं. व्हाट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, because in the entire coordinate geometry this word will come. स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन यूज होते रहेगा, इसलिए इसको एकदम क्लियर कट समझ लेना जरूरी है कि ये आखिर है क्या. सी,
This is x axis and y axis. This is origin. If there is a line, अगर कोई लाइन है ऐसा which makes angle theta with the x axis in positive direction. This direction is called positive direction. जब एंगल को ऐसे नापते हैं इधर से, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. वो त्रिकोणोमेट्री वगैरह में पढ़े हैं ना, जब एंगल को ऐसे नापते हैं इधर से, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल. एंगल इधर क्लॉकवाइज, देन इट इज नेगेटिव. So if a line makes angle theta with x axis in positive direction, positive direction मतलब इधर से हमेशा, ये है x axis, then trigonometrical tangent of this angle, इस एंगल का trigonometrical tangent means tan theta is called slope of this line. If a line makes angle theta with x axis, with x axis in positive direction, ये इंपॉर्टेंट है, positive direction. This is important. If a line makes an angle theta with x axis in positive direction, then trigonometrical tangent of this angle theta, tan theta, is called स्लोप ऑफ द लाइन. उसको उस लाइन का स्लोप बोलते हैं. इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं लेटर m से. देयरफॉर m रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ए लाइन. m इज योर tan थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा? Theta is the inclination of the line with x axis in positive direction. इसको आप ठीक ध्यान में रखिएगा. Let us see. For an example, this is x axis, y axis, and there is a line. Suppose in this way there is a line, such that ये वाला जो एंगल है, ये this angle is suppose 45 degree. Okay, what will be slope of this line? इस लाइन का स्लोप बोलिए कितना होगा? स्लोप ऑफ द लाइन इन फिगर इज, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं. हाँ, इस लाइन का स्लोप बोलिए. इन ऑर्डर टू राइट स्लोप ऑफ ए लाइन, you must see the inclination of the line with x axis in positive direction. इस लाइन का x axis के साथ क्या इंक्लिनेशन है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. ये नहीं, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया इधर नीचे. पॉजिटिव डायरेक्शन में इस लाइन का इंक्लिनेशन हुआ दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ x axis इन पॉजिटिव डायरेक्शन. समझ रहे बात? ये 45, तो ये कितना होगा? 135 का होगा. 135 is the inclination of this line with x axis in positive. ये वाला नहीं लेंगे, इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे. समझ गए बात? सो स्लोप ऑफ द लाइन 135 है ना, उसका x axis के साथ इंक्लिनेशन, तो tan 135 will be the slope of the line. किसी लाइन का स्लोप का मतलब ये एंगल नहीं, कितना एंगल से इंक्लिनेशन है वो उसका स्लोप नहीं है, उसका tan. जैसे थीटा है इंक्लिनेशन, तो tan थीटा इज द स्लोप. 135 है इंक्लिनेशन, देन tan 135. tan 135 मीन्स इट्स वैल्यू इज -1. So -1 is the slope of this line.
I hope you have understood what does it mean slope of a line. If there is a line in this way which makes an angle 60 degree with x-axis in positive direction, what will be slope of this line? Slope of this line will be 1060 होगा इसका स्लोप, है ना, मतलब √3 is the slope of the line. I hope you have understood what does it mean slope of a line. Okay, now very important result is there related to this. Is a very basic concept of coordinate geometry, slope of a line. Okay, so if theta, आपको याद ऐसे रखना है, if theta is the inclination of a line with x-axis in positive direction, then tan theta is called slope of the line. Okay, slope of the line is generally denoted by the letter m. m से denote करते हैं. So m equal to tan theta is the slope of the line, where what is theta? Theta is the inclination of the line with x-axis in positive direction. इसको बोलना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव वर्ड जो है ना वो जरूरी है, ठीक है. नाउ x-axis, y-axis. Now suppose there is a line in this way which passes through 2 points. एक पॉइंट मान लीजिए ये x1 y1 है और एक पॉइंट मान लीजिए यहां. देयर इज अ लाइन which passes through 2 given point. 2 दिया हुआ पॉइंट है. x1 y1 लेने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, गिवन पॉइंट. जैसे xy लिखते हैं तो जनरल पॉइंट होता है. x1 y1 लिखने का मतलब पर्टिकुलर, जैसे 3 4 1 2 इस टाइप का. So x1 y1 x2 y2 are 2 given points on a line. Then what will be the slope of this line? तो इस लाइन का स्लोप हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्लोप क्या होगा? Means we are going to find slope of a line passing through 2 given point x1 y1 and x2 y2. As we know, slope of a line is tan theta, where theta is the inclination of the line with x-axis in positive direction. So this is the inclination of the line with x-axis in positive direction. This angle is suppose theta. Then slope of the line is tan theta, is not it? इसका x-axis के साथ inclination अगर थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो tan थीटा हो गया उसका स्लोप. स्लोप को m लिखते हैं. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा. देखिए यहां से ऐसे परपेंडिकुलर खींच दीजिए, इधर से ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना. व्हाट विल बी दिस पार्ट? ये पूरा हाइट है y2, ये हाइट है आपका y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेके यहां तक पूरा है x2 और यहां से लेके यहां तक ये है x1, तो ये पार्ट तो हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये पार्ट भी होगा वही सेम x2 माइनस x1 और ये पार्ट होगा y2 माइनस y1. सो व्हाट विल बी tan थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 is the result for finding the slope of a line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. एक लाइन अगर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास करता है तो उस लाइन का स्लोप हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और m मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन. देखिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, एक माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे भी एक माइनस कॉमन ले लीजिए तो सेम हो जाएगा ना, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. So slope of the line can be written as y1 minus y2 by x1 minus x2.
simply you remember difference of y coordinate divided by difference of x coordinate. कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप निकालने के लिए दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, लाइन का स्लोप निकल जाएगा. ठीक है, एक एग्जांपल देखिए इसका. ऐसा कोई अगर एग्जांपल मिले तो ओके ऐसे लीजिए ना, एट रैंडम एक लाइन. सपोज दिस इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट. ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ऐसे इन जनरल एक लाइन लीजिए ना. एनी लाइन इज देयर, है ना, व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट. कोई भी एक लीजिए, ऐसे एट रैंडम लीजिए. 3 4 -5 2. A line passes through 3 4 and -5 2. What will be slope of this line? Slope of this line m is difference of their y coordinate. ये दोनों का डिफरेंस, चाहे 4 -2 लिखे चाहे 2 -4 लिखे, एक ही बात है. चलिए 4 -2 लिखे तो फिर नीचे 3 -5 लिखेगा. ये हो गया डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. इसको y2 - y1 कीजिएगा तो ये भी x2 - x1 हो जाएगा. तो सीधा आप लिखेगा 4 -2 by 3 -5. अगर आप लिखेगा 2 -4 तो फिर लिखना होगा -5 -3, एक ही बात. तो ये होगा 2/8, दैट इज 1/4 is the slope of the line. I hope you have understood how to find slope of a line passing through two given point x1 y1 and x2 y2. Okay, now let us see some problems based on slope of a line. इसके ऊपर कुछ छोटा छोटा 2-3 सवाल देख लीजिए, तब ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे. स्लोप ऑफ ए लाइन एक वीडियो में कंप्लीट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना. एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, चाहे वो 20 मिनट का हो या 40 मिनट का हो. एक टॉपिक को आधा क्यों छोड़ेंगे. जैसे ये स्लोप ऑफ ए लाइन, इसी टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट कीजिए. देखिए एक सवाल, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंक्लिनेशन of a line, inclination of the line, inclination of the line whose slope is -1/√3. This is what is your question. Find the inclination of the find the inclination of the line होगा ना, line whose slope is -1/√3. एक लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है. आप लोग अभी पढ़े ना कि एक लाइन का x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन माने ये एंगल, इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो इस लाइन का स्लोप होगा tan theta. Tan theta is the slope, theta is the inclination. So here inclination you have to find, slope is given. आपको दिया हुआ है यहां m का वैल्यू दिया हुआ. m means tan theta is given -1/√3. You have to find the value of theta. यहां से आपको थीटा निकालना. That will be the inclination of the line. -1/√3 minus √3 can be written as tan 30 degree. Okay, now manage this minus inside. tan minus theta, tan minus theta होता है tan minus theta is your minus tan theta, is not it? So minus tan theta can be written as tan minus theta.
Okay, now 10 minus 30, or you can write it in this way. In this way you write, just a minute. ये भी ठीक था, लेकिन हमको तो एंगल चाहिए ना, माइनस में नहीं लेंगे एंगल. इसको आप लिख लीजिए ऐसा 10 180 माइनस 150, ऐसा लिख सकते हैं. आगे माइनस रहने दीजिए, आगे माइनस साइन आप रहने दीजिए, और 30 को लिख सकते हैं 180 माइनस 150. ठीक है ना. आप देखिए ये माइनस है 10 180 माइनस थीटा, ऐसा आप पढ़े ना. 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा. माइनस को हटाना था, तो 10 180 माइनस 150 क्या होगा, माइनस 10 150. माइनस माइनस प्लस 10 150, माइनस हट गया. इस तरह से आपको माइनस को हटा लेना था. ठीक है. सो 10 थीटा इक्वल टू 10 150. सो व्हाट विल बी थीटा, आप लिख सकते हैं ना थीटा 150. समझे. तो कुछ नहीं, ये माइनस था 10 30 ना, 30 को लिखे 180 माइनस 50. अब 10 180 माइनस थीटा, माइनस 10 थीटा होता, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 10 150. तो 10 थीटा इक्वल टू 10 150. सो थीटा इक्वल टू 150. सो 150 इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ये. ठीक है. एक दूसरा क्वेश्चन देखिए. या देखिए एक थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ. जैसे 10 थीटा इक्वल टू हम लिखे थे ना माइनस 10 30, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. माइनस 10 30 को आप लिख सकते हैं 10 180 माइनस 150. ठीक है. 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10, सॉरी 30 है ना ये, तो आप लिख लीजिए इसको 30 लिख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं. देखिए 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस 10 थीटा, वही वाला. तो माइनस थीटा कैन बी रिटन एज 10 180 माइनस थीटा. 30 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30. अब 10 180 माइनस 30 व्हाट विल बी 10 150. सो थीटा इक्वल टू 150. ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है. माइनस 10 थीटा कैन बी रिटन एज 10 180 माइनस थीटा. 10 180 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा. सो माइनस 10 थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस. वैसे ही लिख दी. तो माइनस हमको हटाना था. अब 180 माइनस 30 हो गया 150. तो 10 थीटा इक्वल टू 10 150. सो थीटा इक्वल टू 150. या ऐसे कर लिए, माइनस को छोड़ दिए, 30 को लिख दिए 180 माइनस 150. अब 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, माइनस माइनस प्लस 10 150 होगी. एक ही बात है, चाहे आप जैसे कर लीजिए. ठीक है. माइनस को हटा लीजिएगा और थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा. ओके, लेट इट बी. एक और सवाल देखिए, दूसरा. समझ गया था इसको. मैथ्स में कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही करना है, आपको सॉल्व करना है ना. देयर मे बी डिफरेंट वे फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम. अब इसी में थीटा को निकालने का अलग अलग तरीका है, और भी तरीका अपना सकते हैं उसमें, है ना. ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस करेक्ट होना चाहिए. देखिए एक और क्वेश्चन. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. क्वेश्चन इज फाइंड द slope of the line through the point points 4 minus 6
एंड एक और पॉइंट दिया है -2 -5. This is your question. Find the slope of the line. एक लाइन है, इसका स्लोप निकालना है. ये पास करता है एक पॉइंट 4 - 6 और दूसरा पॉइंट -2 -5 से. आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है. बात समझ गए? सो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट. आप ले लीजिए डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट -6 -5 ऐसा. ये हो गया डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट 4 -2 is the difference of their x coordinate. This ratio will gives you the slope of the line. ये हो जाएगा -6 + 5 और ये 4 + 2, तो ये हो गया -1/6 is the slope of the line. Okay, let us see one more question. Determine lambda so that 2 is the slope of the line. 2 is the slope of the line through 2 5 λ3. This is what is your question. देखिए तो क्या कीजिएगा इसमें. डिटरमाइन लेमडा निकालना है आपको. सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू दिस. लाइन का स्लोप होगा 2 जो पास करता है 2 पॉइंट से, और दोनों पॉइंट दिया हुआ है. दिस इज व्हाट इज योर क्वेश्चन. देयर इज अ लाइन ऐसा. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. वन इज 2 5 एंड अनदर इज λ3. ये 2 पॉइंट से एक लाइन पास करता है एंड इट्स स्लोप इज गिवन 2. इसका स्लोप 2 है, तो ये लेमडा का वैल्यू निकालना है. ओके, व्हाट विल बी स्लोप ऑफ द लाइन? 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2 - λ. Difference of their y coordinate by difference of their x coordinate. This is given 2. From here you have to find the value of lambda. यहां से lambda निकाल लीजिए, वो आपका आंसर होगा. 5 - 3 2, 4 - 2 lambda. So 2 lambda equal to 4 - 2. So lambda equal to 1 is the answer. Is the value of lambda. और देखते हैं कोई क्वेश्चन. चलिए इतना. सो आई होप you have understood in this video that any equation of this type ax plus by plus c equal to 0 always represents a straight line. Okay, in order to prove this is a straight line, let us suppose this represents a curve. We take its 2 point x1 y1 and x2 y2. Okay, and we show the entire line segment joining x1 y1 and x2 y2 completely lies on this curve. Then only we can say this curve, means this linear equation in 2 variable represents a straight line. For that we take any general point in between these 2 points which divides these 2 points in the ratio lambda is to 1.
and this point can be written as then lambda x2 plus x1 by lambda plus 1 and lambda y2 plus y1 by lambda plus 1. This may be taken as any general point in between these two. Now if this point also satisfy this, it means each and every point between x1 y1 and x2 y2 will satisfy this. It means this line segment joining x1 y1 and x2 y2 completely lies on this curve, and hence this curve is a straight line. In this way we can first of all prove that yes, ax plus by plus c equal to 0, which is linear equation in two variable, always represents a straight line. Then after we read slope of a line. If a line makes an angle theta with x-axis in positive direction means in anti-clockwise direction. If we take any angle in anti-clockwise direction, then it is called positive direction. In this way, if theta is the inclination in positive direction, then tan theta means trigonometrical tangent of this angle is called slope of the line, and slope of the line is generally written by the letter m. Then m, which is equal to tan theta, is the slope of the line. If 30 degree is the inclination, then tan 30 degree is the slope. If 60 degree is the inclination, then tan 60, that is root 3, is the slope of the line, and so on. Okay, see, if there is a line, 1 minute more, okay, then we complete this video. मान लीजिए ऐसा कोई लाइन है, ऐसे करके, ठीक है, और ये लाइन आपको 30 डिग्री दे रहा है. ये व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन. सी, this angle 30, this is 90, so what is this? ये कितना होगा तब? 60, and if this is 60, this is also 60. In this way we can take. So 60 degree is the inclination of the line with x-axis in positive direction. So what will be slope of the line? tan 60 degree means root 3. बात समझ गए? तो किसी भी लाइन का स्लोप निकाल लीजिएगा. अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट है आपका x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस लाइन का स्लोप अगर लिखना हो, डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट, दिस विल गिव्स यू स्लोप ऑफ द लाइन. समझ गए बात? So in this video, keep this much. Go on watching coordinate geometry. In the next video, we discuss many more results related to straight lines in a plane. Thank you for watching.